اچھا، لائف ٹائمز اینڈ کراس سیکشنز. پارٹیکل فزکس میں مختلف پارٹیکلز آپس میں جب اسکیٹرنگ کرتے ہیں یا پھر وہ ڈیکے ہوتے ہیں یا باؤنڈ اسٹیٹس بناتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں نئے پارٹیکلز کے بارے میں جان سکیں. تو جو 3 فنڈامنٹل پروبز ہیں پارٹیکل فزکس کے یا میکینزمز ہیں، ان میں ایک باؤنڈ اسٹیٹس ہیں اور ڈیکیز ہیں اور اسکیٹرنگ ہے. تو سب سے پہلے تو پارٹیکلز جو ہیں آپس میں باؤنڈ اسٹیٹس کریٹ کرتے ہیں. اچھا، اس میں فنڈامنٹل پارٹیکل بھی ہو سکتے ہیں اور کمپوزٹ پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایٹم ایک باؤنڈ اسٹیٹ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پروٹونز ہیں، نیوٹرانز ہیں اور الیکٹرانز ہیں. تو یہ جو باؤنڈ اسٹیٹس ہیں یہ یوزلی ہم شروڈنگر ایکویشن کی مدد سے ان کو سالو کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نان ریلیٹیوسٹک ہے. تو نان ریلیٹیوسٹک ریجیم میں جو باؤنڈ اسٹیٹس ہیں وہ شروڈنگر ایکویشن جو ہے ان کو زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہے. لیکن جب ہم ریلیٹیوسٹک ریجیم میں جاتے ہیں جہاں پر پارٹیکلز ڈیکے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسا پارٹیکل ہوگا کمپوزٹ پارٹیکل جو ڈیکے کرے گا اور اپنے ڈاٹر پارٹیکلز میں تقسیم ہو جائے گا، تو اس کو سمجھنے کے لیے یوزلی ہم ریلیٹیوسٹک ریجیم میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ ہمیں ڈیراک ایکویشن یا کلائن بورڈن ایکویشن کی مدد لینی پڑتی ہے. اسی طریقے سے پھر اسکیٹرنگ ہوتی ہے اور پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں اور وہ پھر اپنے کانسٹیٹوئنٹس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو اسکیٹرنگ ہے اگین وہ ایک ریلیٹیوسٹک ریجیم میں ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو باؤنڈ اسٹیٹس ہیں یہ ایک نان ریلیٹیوسٹک ریجیم یوزلی اس میں آتی ہیں اور ڈیکیز اور اسکیٹرنگ جو ہے یہ ریلیٹیوسٹک ریجیم ہے. تو ایڈوانس پارٹیکل فزکس میں یہ جو 2 پروبز ہیں یا 2 میکینزمز ہیں، ڈیکیز اور اسکیٹرنگ، یہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اب اہم بات یہ ہے کہ ہم ڈیکیز اور اسکیٹرنگ میں ایکچولی میجر کیا کریں گے. تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم پارٹیکلس کی ڈیکے کے اوپر جاتے ہیں، یعنی ایک پارٹیکل ڈیکے کر رہا ہے، تو پھر اس وقت ہماری میجرمنٹ یا کیلکولیشن کیا ہے، ہم کس چیز کو کیلکولیٹ کریں گے. اور جب ہم بعد میں فائنل کیلکولیس استعمال کریں گے تو ہم ڈیکیز کے اندر کون سی ایسی پیرامیٹر ہے جس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے اور پھر ایکسپیریمنٹ کے اندر اس کو میجر کریں گے. سملرلی اسکیٹرنگ میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی کون سا ایسا پیرامیٹر ہے جس کو ہم پہلے کیلکولیٹ کریں تھیوریٹیکلی اور پھر ایکسپیریمنٹلی اس کو میجر کریں. کیونکہ یہ 2 ایسے میکینزمز ہیں یا پروبز ہیں جو پارٹیکل فزکس میں ہمیں نئی انفارمیشن دے سکتے ہیں، نئے پارٹیکلس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ایسے انڈسکورڈ پارٹیکلس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا ان کی اسٹیٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ریسنٹلی ڈیکیز اور اسکیٹرنگ یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں ایکسپیریمنٹلی اور تھیوریٹیکلی دونوں پارٹیکل فزکس میں ریسرچ کے لیے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈیکیز کے اوپر کہ اگر ایک پارٹیکل ڈیکے کرتا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر کون سا ہے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ اگر لیٹ سے آپ کے پاس جو پارٹیکلز ہیں، جو ایلیمنٹری پارٹیکلز ہیں، وہ ان کو اگر آپ کمپیئر کریں ایز این ایگزامپل ود ہیومن بینگس، تو ہیومن بینگ جب ڈیکے کرتے ہیں تو اس میں پروبیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی لائف بہت زیادہ ہے تو وہ پہلے ڈیکے کر گئے، یعنی ایک 80 ایئرس بندے کے مرنے کا چانس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 20 ایئرس. لیکن پارٹیکلز میں ایسا کچھ نہیں ہے. پارٹیکل سارے آئیڈینٹیکل ہیں اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا پارٹیکل پہلے کریٹ ہوا تھا تو وہ پہلے ڈیکے کرے گا، اس طرح نہیں ہے، یا بعد میں کریٹ ہوا تھا تو بعد میں ڈیکے کرے گا، ایسے نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے تو نمبر آف پارٹیکلس کی، یعنی سب سے پہلے جو ہمارے پاس نمبر آف پارٹیکلس پڑے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی سارے پارٹیکلس ایک جیسے ہیں، وہ انڈسٹنگوشیبل ہیں. جیسے اگر ہمارے پاس پروٹونس ہیں تو سارے کے سارے پروٹونس، یا اگر ہمارے پاس نیوٹرونس ہیں تو سارے کے سارے نیوٹرونس ایک جیسے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو پارٹیکل ہے وہ کب کریٹ ہوا تھا اور کب ڈیکے ہوا تھا. تو اس میں ہم یہ فرق نہیں کر سکتے. دوسرا ریلیٹیوسٹکلی بھی ہم ان میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون سا پارٹیکل پہلے ڈیکے کر جائے گا. تو ہمارے لیے سارے پارٹیکل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں. تو جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ایوریج کر سکتے ہیں. جب ہم انڈیویجول بیسس پہ کسی ایک پارٹیکل کا پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو ہم جب ایوریج پہ جائیں گے تو ہم ٹوٹل نمبر آف پارٹیکلس لیں گے. اور اس کے بعد اس میں جو دوسرا ہے وہ ٹائم انٹرول ہے، کتنا ٹائم اسپین ہے اور اس کے بعد اس ٹائم کے اندر کتنے پارٹیکل ڈیکے ہوئے ہیں. تو ڈیکے تو ڈیکریز تو ہوگا نمبر آف پارٹیکلس. اگر اوریجنلی ہمارے پاس
n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं तो dn जो है वो डिक्रीज होगा इन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और dt जो है वो उस टाइम है जिस टाइम में डिके आएगा। तो ये तो क्लियर है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास ये डिके रेट आप देख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है जो हमें डिके का बता रही है, लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं और हम देखना चाहते हैं कि वो dt टाइम में कितना डिके हो गए हैं, यानी डिक्रीज में कितना है dn में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो गामा है, डिके रेट, और ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, चेंज हो जाता है, पार्टिकल्स की जो नेचर है उसके मुताबिक इसमें तब्दीली आती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो इसमें आप देख सकते हैं कि वो डिके रेट है। और इसी को फिर अगर हम इंटीग्रेट करें इस इक्वेशन को तो आप देखें कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n इंस्टेंट वो हमारे पास n नॉट जो कि इनिशियल टाइम के ऊपर मौजूद थे, और एक्सपोनेंशियली वो डिके करते हैं। आप माइनस साइन देख रहे हैं कि उसमें वो डिके जो होगा पार्टिकल्स में वो एक्सपोनेंशियल होगा। तो किसी भी डिके प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसका डिके रेट है, वो किस तरह डिके कर रहा है। और एवरेजली हम देखते हैं कि हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और फिर वो पार्टिकल्स डिके कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उनका गामा क्या है। इफ़ वी नो गामा तो उससे हम आगे फिर कुछ बता सकते हैं। अच्छा, अब इसी डिके रेट से जो नया पैरामीटर है वो लाइफ टाइम है। तो अब लाइफ टाइम जो है वो इसके इनवर्स है, जाहिर बात है जितना तेज़ी से डिके करेगा तो लाइफ टाइम कम होगा, और अगर डिके स्लो होगा तो लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। और बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर अवकाश ऐसे होता है कि जो एक पार्टिकल डिके करता है तो वो डिफरेंट मोड्स में डिके करता है, सिर्फ एक मोड नहीं होता। तो फिर हमारे पास जो टोटल गामा है वो उन सब का सम होता है, यानी ये गामा आई जो है ये एक मोड के लिए है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 मोड्स हैं या 5 मोड्स हैं, तो उन सब का सम जो है वो टोटल डिके रेट के बराबर होगा। तो इंडिविजुअल मोड में अपना डिके रेट होगा जिसको हमने गामा आई से रिप्रेजेंट किया है। इस सारे प्रोसेस को हम एक अच्छी एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब जो हमने डिके को देखा है तो अगर हम देखें कि अब इसमें लेट्स से एक पार्टिकल है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा पायोन की, पाई प्लस पायोन, ये चार्ज पायोन है, न्यूट्रल पायोन भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम या चार्जलेस पायोन, लेकिन इस वक्त हम पाई प्लस की बात कर रहे हैं। अब ये जो डिके होता है सबसे पहले ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो ये इसका पहला मोड है, ये पहला मोड है जिसमें ये डिके हुआ। इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हद तक ये पायन जब क्रिएट होते हैं तो इसमें डिके कर जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और डिके रेट है, डिके मोड है जो कि म्यूऑन प्लस और म्यूऑन न्यूट्रिनो इसमें डिके हो सकता है। इसके साथ साथ एक तीसरा है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पाई नॉट, उसमें डिके हो सकता है। और तीसरा जो है उसमें चौथा डिके मोड जो है वो ये है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पायन, इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरे पास 100 पायन्स हैं तो उनमें से 60 पायन जो है वो उसमें डिके कर जाएंगे, जैसे 30 इसमें कर जाएंगे, 5 उसमें कर जाएंगे, 5 इस तरह। तो हर एक का अपनी परसेंटेज है हर एक डिके मोड की। तो इस केस में ये डिके मोड्स हैं, किसी में और ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो टोटल टॉ है वो 1 और गामा टोटल के बराबर है। तो फिर हम हर एक मोड के लिए एक गामा निकालते हैं, हर एक अपना डिके रेट है, और टोटल गामा जब निकल आता है डिके रेट तो फिर उससे हम लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि डिके प्रोसेस जो है वो हमें ये बता सकता है, जैसे इस केस में आप ये देखें कि जब आयन डिके करता है अपने सेकेंडरी पार्टिकल्स में तो उससे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नए पार्टिकल्स के बारे में मिल सकती है, बल्कि इन पार्टिकल्स को समझने में भी हम ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए डिके जो है वन ऑफ द प्रोब्स, वन ऑफ द मैकेनिज्म्स कि हम अंडरस्टैंड कर सकें पार्टिकल्स को और नए पार्टिकल्स को ढूंढ सकें। अच्छा, अब इसमें ये भी आपने देखा कि 4 मोड्स में वो डिके हो रहा था। तो यूजुअली ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम देखें कि कौन सा मोड जो है वो ज़्यादा है और कौन सा कम है। इसको हम यूजुअली कहते हैं ब्रांचिंग रेशियो। तो ब्रांचिंग रेशियो जो है वो गामा आई यानी किसी पर्टिकुलर मोड के लिए जो डिके रेट है डिवाइडेड बाय टोटल गामा, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ब्रांचिंग रेशियो है। तो अक्सर ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि एक पर्टिकुलर ब्रांच में एक पर्टिकुलर मोड में कितने % चांस है, प्रोबेबिलिटी है डिके होने का पार्टिकल का एज कम्पेयर टू अदर्स। तो टोटल को निकाल के फिर उसी ब्रांच के गामा पे डिवाइड करते तो हमें ब्रांचिंग रेशियो का पता चल जाता है। अब चाहते हैं हम अपने सेकंड मैकेनिज्म या प्रोब के ऊपर, जैसे हम कहते हैं स्कैटरिंग। अब 2 पार्टिकल जब आप आपस में आते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है तो आपस में स्कैटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कैटरिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है पार्टिकल फिजिक्स में,
क्योंकि इसे हम एक तरह से सॉफ्ट स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो टोटली उनका इम्पैक्ट हो आपस में, वो एक दूसरे के करीब से भी गुजर सकते हैं। लेकिन जब आप स्कैटरिंग करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसका क्रॉस सेक्शन है, यानी अगर पार्टिकल बहुत छोटा है, उसका एरिया कम है, तो कोलिजन भी होना कम हो जाएगा, उसका चांस कम होगा। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो फिर कोलिजन का चांस भी बढ़ जाएगा। तो जो आपको एरिया वो मिल रहा है उसको कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो डिके में था हमारे पास डिके रेट, और यहाँ पर है हमारे पास क्रॉस सेक्शन। तो देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है। तो क्रॉस सेक्शन इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो टोटल क्रॉस सेक्शन हम लेंगे, तो मतलब हर एक पार्टिकल की जो कोलिजन है, क्योंकि अक्सर तो हम इनकी टोटल बीम्स लेते हैं, तो वो बीम जब आपस में आकर कोलाइड करती हैं तो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के क्रॉस सेक्शन से मिलकर टोटल क्रॉस सेक्शन हमारे पास इस तरह बनता है। अगर मैं आपको डायग्राम की सूरत में बताऊं तो इसमें आप देखें कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो लेट्स से ये टारगेट है, आपके पास स्कैटरिंग सेंटर है और यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है जो कि उसके साथ कोलाइड करना चाहता है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। इम्पैक्ट पैरामीटर बी जो है वो ये देखता है कि ये पार्टिकल उससे कितने क्लोज आ सकता है। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, और फिर उसके बाद स्कैटरिंग एंगल है, क्योंकि अगर ये हेड ऑन कोलिजन नहीं भी होती है तो वो उसके करीब से, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस शामिल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनके दरमियान रिपल्शन है और वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ सकते, लेकिन वो जो स्कैटरिंग एंगल है वो हमें बताता है, और इम्पैक्ट पैरामीटर हमें बताता है कि ये दोनों की आपस में कोलिजन है, इन अ सेंस एक दूसरे के करीब आने का चांस कितना है। तो अगर इनके दरमियान हम रिलेशनशिप देखें बी और थीटा के दरमियान, तो वो r cos थीटा बाई 2, और थीटा जो है इस तरह हमारे पास b बाई r जो है वो, और अगर r जो है वो रेडियस हम ले लेते हैं अक्सर और स्फीयर का, यानी अगर हम हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग की एग्जांपल लें, क्योंकि ये तो हो सकता है कि अक्सर औकात जो है वो स्फीयर जो कोलिजन हो रही है वो उसको हम हार्ड स्फीयर ले लेते हैं, यानी उसमें ज़िमुथल एंगल या और चीज़ों को निगलेक्ट कर लें। तो आप जो समझें कि ये जो हमारे पास एक पार्टिकल है वो एक हार्ड स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर आपका b है, और जब ये पार्टिकल जाता है तो इस स्फीयर की सरफेस से एक तरह से स्कैटर हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस केस में स्फीयर का जो रेडियस है वो r, तो b और थीटा के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें ये रेडियस जो है r शामिल है। तो इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मतलब यहाँ पर या डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट पैरामीटर b है, और ये d सिग्मा जो है ये वो क्रॉस सेक्शन है उसका, वो जो उसको दे रहा है, और d ओमेगा जो है इसमें सॉलिड एंगल है, और वो सॉलिड एंगल और d थीटा जो है वो ये, और ये phi जो है ये ज़िमुथल एंगल है। तो इसमें आप देखें कि जब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि जो चेंज है इन b और जो चेंज है इन थीटा वो आपस में कैसे रिलेटेड है। तो इनके लिए अगर आप इक्वेशन इसी डायग्राम से देखें तो d सिग्मा जो है वो b db और d phi के, और इसके ऊपर हमने वो ये मॉड लगाया क्योंकि ये इसकी वैल्यू यूजुअली पॉजिटिव ही होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, और d ओमेगा जो है वो उसी आप डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से d ओमेगा जो सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल की डिफिनीशन से आप देखें तो आपके पास ये sin थीटा d थीटा d phi के बराबर आएगा। तो इससे हम सो टू से एक डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन यानी बेसिकली d सिग्मा बाई d ओमेगा है, वो हमारे पास ये b बाई sin थीटा db बाई d थीटा के बराबर है। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे पास जो दो मेजर रिलेटिविस्टिक रिजीम में प्रोब्स हैं या मैकेनिज्म्स हैं पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, वो एक डिके है और एक क्रॉस सेक्शन है, स्कैटरिंग है। तो अगर जब हम पार्टिकल्स के डिके को स्टडी करते हैं, अब मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोजिट पार्टिकल्स जब अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में डिके करते हैं और मुख्तलिफ मोड्स में जाते हैं तो वहाँ पर डिके रेट को कैलकुलेट किया जाता है और एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब हम स्कैटरिंग करते हैं और क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं कि किस तरह एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के करीब तर जा सकता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब आप ये ले सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर उसके करीब जाकर, और तो फिर ये होता है कि जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, करीब जाते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उससे सामने आती है और हम पार्टिकल फिजिक्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इन दोनों पैरामीटर्स को हम यूज़ करेंगे in order to calculate many interesting things in particle physics. With this, I thank you.
کوشچن سر یہ جو بیان ہے یہ ڈفرینٹ کراپ میکنگ وہ ہو جاتے ہیں ڈیکے ہو جاتا ہے, سنگل کراپ میکنگ ڈیکے نہیں پیام. یس سر. یہ ویسے تو مطلب یہاں پر آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کے موڈس ہیں 4 موڈس ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب دیکھیں اصل میں جو الاؤڈ ہے یعنی یہ پاسبل ہے, اس میں لاز آف کنزرویشن آپ چیک کریں گے کہ کیا لا آف کنزرویشن آف ماس اینڈ انرجی ہے ادھر. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ پایان کا ماس کم ہو اور ان کا ماس زیادہ ہو, تو یہ اس میں مسئلہ نہ ہو. چارج ٹوٹل چارج کنزرو ہو, ماس انرجی کنزرو ہو, مومنٹم کنزرو ہو. جب ساری کنزرویشن لاز موجود ہوں یا اور اس کے علاوہ جو کوانٹم نمبرز ہیں وہ کنزرو ہوں, تو پھر کنزرویشن کے بعد یہ ایک پاسبلٹی ہے. تو پارٹیکل فزکس میں ایک رول یہ ہے کہ اگر ایک پارٹیکل یہ لاز آف کنزرویشن کو اوبے کر رہا ہے اور کوئی پاسبلٹی ہے تو پھر وہ اس میں لازمی ڈکے کرے. تو یہ سارے پاسبل ڈکے میکینزمس ہیں. تو اس میں یہ کسی میں زیادہ لیکن کسی میں کم, لیکن ہوگا ضرور. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, مثال کے طور پر میں کہوں کہ پایان پاسبل ہے نا کہ آپ دیکھیں اس میں پازیٹیو چارج ہے, اس میں میون میں پازیٹیو چارج ہے اور نیوٹرینوں پہ چارج نہیں ہے, تو چارج بھی کنزرو ہے, ماس بھی کنزرو ہے, اس کا ماس زیادہ ہے برابر ہوگا نا ماس, اور کچھ گیما رہے گا. تو یہ پاسبلٹی ہے نا, تو پھر اس میں یہ ڈکے ہوگا ضرور. ٹھیک ہے, تو جب پاسبلٹی ہوتی ہے تو پھر اس میں ڈکے بھی ہوتا ہے. ہاں جہاں پر کنزرویشن کے لاز اوبے نہ ہو رہے ہوں پھر وہ ڈکے پاسبل نہیں ہوتا, تو پھر وہ ہوتا بھی نہیں. لیکن اگر ہو سکتا ہے تو پھر ہوگا بھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ پاسبلٹیز ہیں تو یہ ہوگی بھی. کہیں پہ پاسبلٹیز کم ہوں گی تو موڈس بھی کم ہوں گے, اگر کہیں پہ زیادہ ہوں گی تو پھر وہ بھی زیادہ ہوں گے. اوکے, تھینک یو.